हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएफएम मॉड्यूल बी, यूनिट नंबर 13, विच इज ऑल अबाउट रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो बहुत सारा कोर्स कंटेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर एंड we'll try to summarize within 1 hour 30 minutes. So let's see कहाँ तक आपका हम लोग जाते हैं, ठीक है। So guys, module B, which is all about your risk management, and we already done with the risk management framework and risk in banking business. So today we are going to talk about risk regulation in banking industry. So let's have a quick look about the course content. Risk regulation in banking industry. So regulation of banking industries. Then we have need for risk regulation. Then we have Basel one capital accord. Then we have 1996 amendments, which is inclusion of market risk in Basel one. Then we have Basel two, Basel two accords, and Basel three. Then capital charge for credit risk mitigation, capital charge for market risk, and operational risk. For this, I'll come up with a separate session. Then we have pillar 2, supervisory review process, where we have 4 principles. Pillar 3, market discipline, disclosures, requirements and all. Capital conversion buffer, leverage ratio, countercyclical capital buffer CCBs, and systematically important financial institutions, where we have DSAV as well. Okay. And the final one is risk based supervision, right? So there are so many subtopic which are generally part of this particular unit. So let's start with the basics or the basic introduction. So whenever we talk about risk regulation, so it is like as in our past two session where we talk about the banking business is purely it's a risk based business. Risk is associated with there are so many type of risk are associated with the each in individual activities, like let's say if we enter in a like asset creation, loan accounts and others. So there are like credit risk, operational risk, or even in our portfolios we do face operational, market risk, liquidity risk. तो बहुत सारे रिस्क आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो इफ यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर रेगुलेशन सुपरविजन ऑन दीज पर्टिकुलर entities, so they can lead to a major default in the economy. As we all know, banks are the backbone of the economy, ठीक है। सो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए आपका कहीं ना कहीं एक बैकबोन की तरह काम कर रहे होते हैं बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो रेगुलेशन मीन्स हियर वी हैव a primary role of the central bank, like in case of India it is RBI. So जैसे RBI आपका पूरा like RBI Act 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इवन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनको आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है एंड इन सभी एक्ट के थ्रू आरबीआई आपका ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो लाइक ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, लाइक आई होप यू हर्ड अबाउट दी CRAR और कैपिटल कन्वर्जन बफर्स और इवन लाइक दिस आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो और द bifurcation of capital base which is a combination of tier 1, tier 2 and tier 3 capital। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपका सिर्फ और सिर्फ इनका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट बैंक from any kind of like we can say stressful situation or any kind of losses और uncertainties उनसे बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जैसे बहुत सारे इसमें आपको गाइडलाइंस मिलेंगे, इंट्रोडक्शन मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ आपका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी पार्ट पे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में व्हेन विल टॉक अबाउट मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, तो वहां पे काफी डिटेल में इनका डिस्कशन होगा। Apart from RBI, we have one bank which is known as BIS, one of the oldest financial institution in the world, that is Bank for International Settlement। तो उसकी एक कमेटी आपका दैट इज नोन एज BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन।
तो उसकी जो गाइडलाइंस है बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट मेकिंग है और जिनके बारे में भी हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में आज आपका डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। Banking and financial services all over the world are regulated usually by a monetary authority, like in case of India, it is RBI. This is because banking and financial services are the backbone of the of an economy. A healthy and strong banking system is must for any economy to function smoothly and to prosper. As we have seen, bank have a risk and risk taking is their business. So that means like जैसे हमने बात किया था ना कि like with every transactions there is a probability of default and bank they have to manage risk as well as activities simultaneously, ठीक है। एक साथ साथ आपका दोनों का मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो इवन दैट आपका जो स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR, SLR एंड अदर, ऐसे बहुत सारे रूल्स आपके हैं, ठीक है। सो बट इफ रिस्क टेकिंग इज नॉट रेगुलेटेड प्रॉपरली, बैंक मे फेल एंड it would have a disastrous effect on the economy. Therefore, monetary authorities across the world regulate functioning of the bank. In India, it is regulated by RBI itself. ठीक है। So, what are some key regulations? अगर हम लोग बात करें ये जो regulators इनके कुछ गोल की अगर हम लोग बात करें major objectives. So first one is improving the safety of the banking industry by imposing capital requirements in the line with bank risk, which is totally linked with your different areas like जैसे बैंक साइज एंड अदर्स, ठीक है। और कौन से बकेट में आप आते हैं 1 to 5, आपका ऐसा बाइफर्केशन आपको मिलेगा। विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर वन ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको देखते हैं कि लाइक जैसे कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, इस तरीके से जो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू मेंटेन सर्टेन बफर सो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर बफर इन बैड टाइम, ठीक है। और that buffer can protect your bank from any kind of stressful situation in the economy. Labeling the competitive playing field of bank through setting common benchmark for all the players, which are generally rules, regulation, guidelines under RBI Act, under BR Act and others. Promoting sound business and supervisory practices. तो आपका जैसे बेसल 2 आपका जिसमें या आज की डेट में जिसको बेसल 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो इसके पिलर्स को अगर आप देखते हैं, सो पिलर 2 इज ऑल अबाउट सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, SRP प्रोसेस इट इज कॉल्ड, ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो जिसमें आपका देयर आर 4 प्रिंसिपल्स एंड like the out of these 4 principles, 3 principles belongs to the regulators, ठीक है। तो कैसे like जो आपका पिलर 1 है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो उनको कैसे बैंकों के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। अगर कोई आपका जो मिनिमम लेवल है उनसे नीचे जा रहा है तो उनके ऊपर क्या एक्शंस होंगे। सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टेमिक रिस्क, ठीक है। सिस्टेमिक रिस्क विल टॉक इन डिटेल, ठीक है। इट इज द काइंड ऑफ failure of one bank which lead to failure of other bank, like we have global financial crisis 2007-8, a suitable example for this, जहाँ पे लेमन ब्रदर बैंक आपका डिफॉल्ट हुआ तो लाइन वाइज बहुत सारे बैंक आपके डिफॉल्ट हुए। तो जहां से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपका डीसिप का जो कॉन्सेप्ट आया तो उसके बारे में भी बात होगी। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एज द डिपॉजिटर कैन नॉट इम्पोज अ रियल मार्केट डिसिप्लिन ऑन बैंक, ठीक है। सो डिपॉजिटर प्रोटेक्शन इज द मेजर और प्राइमरी गोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टेमिक रिस्क के ऊपर, ठीक है। So now what is a systemic risk? So there is a difference between systematic and systemic risk, हाँ, ठीक है। जैसे रिस्क कैसे दो तरीके से हमने समझे थे, एक आपका systematic which is uncontrollable, unavoidable in nature, दूसरा आपका unsystematic which is controllable, diversifiable in nature, ठीक है। अब ये जो systemic risk है आपका, इसको हम लोग कैसे लेते हैं, it is kind of failure of one bank that can lead to failure of another bank or another institutions, and that can create a ripple effect in the market, right? So that is generally known as systemic risk। जैसे आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 जहां से ये लिंक किया गया, और उसी के बाद आपका इसको काफी ज्यादा लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कैपिटल कन्वर्जन बफर, काउंटर साइक्लिकल बफर्स,
आपका LCR, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये सारे रेशियोज आपका उसी के बाद निकले, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट लेमन ब्रदर बैंक स्टोरी, ठीक है। So there was a bank called Lehman Brother Bank that was one of the largest bank in US that time in 2007-8 एंड कहीं ना कहीं ये शिकार हुआ था किसका, आपका जो सबप्राइम लैंडिंग होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लाइक इन 2000 ड्यूरिंग 2000 लाइक 2000 to 2004 देयर वाज अ देयर इज अ हाउसिंग बबल इन यूएस, ठीक है। मतलब सबको ये लगता था कि घर खरीदना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सबने घर खरीदना शुरू कर दिया एंड बैंकों ने उनको फाइनेंस करना शुरू कर दिया एट अ मिनिमल मार्जिन, ठीक है। जैसे सपोज दैट देयर इज अ हाउस whose value is 1 crore and bank is financing this particular house at the rate of 5% of initial आपका down payment, ठीक है। So that means in this particular property or in this particular asset, bank have stakeholding of 95%, bank ownership is this, and home buyers ownership is how much, आपका होम बायर्स जो आपका है उसकी ओनरशिप कितनी है, ओनली 5%, ठीक है। सो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लाइक हर कोई आपका घर खरीदना शुरू कर दिया, लोगों ने दो दो तीन तीन घर खरीदना शुरू कर दिए। तो जिससे क्या हुआ कि नाउ लाइक सिचुएशन ऐसी हो गई कि सबके पास घर हो गए, ठीक है। सो नाउ लाइक देयर इज नो रेंटल इनकम और अदर्स, अब ये चीज हो गई, सप्लाई काफी ज्यादा हो गई। सो दैट बबल गॉट बस्ट, ठीक है। अब जो हाउसिंग का बबल जो बन रहा था वहां पे वो फूटा, और वो फूटा तो प्राइसेस आपके ये जो हाउसेस हैं इनके प्राइसेस क्या हुए, आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो सपोज दैट इट केम डाउन टू 80 लैक्स। अब यहाँ पे जब ये आया तो जो होम बायर था आपका उसका 5 लाख वो तो ऑटोमेटिकली कब का जीरो हो गया था 95 पे। अब यहाँ पे बैंक भी आपका कितने में आ गया, निगेटिव में आ गया, 15 लाख के निगेटिव में आ गया, ठीक है। सो व्हाट दिस होम बायर डिड, जो आपका एसेट हमारा था बैंक का, उसने क्या किया, उसको उसकी उम्मीद खत्म हो गई फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी की। उसने बोला यार ऊपर भी जाएगा तो कितना जाएगा, हार्डली 1 करोड़। तो उसने बोला नहीं सर हमारे से नहीं होगा, ठीक है। सो ये मॉर्गेज है, आप अपनी मॉर्गेज को रखिए, और अपने आप को उसने इंस्टॉल आपका डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ऐसे बैंकों के पास बहुत सारे घर, नाउ आफ्टर दिस दिस ऐसे बहुत सारे डिफॉल्ट्स आए तो लेमन ब्रदर बैंक आपका डिफॉल्ट हो गया। अब यूजुअली क्या होता है, मतलब ये अभी भी काम करता है ये चीज, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बड़े बैंक होते हैं उनके ऊपर आपका जो छोटे बैंक्स होते हैं दे जनरली कीप देयर डिपॉजिट विद बिगर बैंक, ठीक है। या उनकी डिपेंडेंसी आपकी होती है किसके ऊपर, बड़े बैंकों के ऊपर आपका, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास है बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनीज आपकी हैं, ठीक है। तो इन सबका इंश्योरेंस आपका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये मतलब ये डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट हुआ, तो लाइन वाइज ये सब आपका डिफॉल्ट होने लगे। सो दिस रिपल इफेक्ट इज जनरली नोन एज सिस्टेमिक रिस्क, एंड इंश्योरेंस कंपनीज इतना बड़ा अमाउंट कहां से देती, वो भी डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गया। So this scenario, like failure of one bank that created worldwide recession 2007-8 global financial crisis जिसको हम लोग बोलते हैं। So this is known as systemic risk। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, systemic risk के नाम से जानते हैं, ठीक है। So systemic risk is the risk of failure of whole banking system, and individual bank failure is one of the major source of this of the systemic risk. This happened because of high interrelation that exists on ongoing basis between banks through mutual lending and borrowings and other commitments, ठीक है। तो ये आपका सिस्टेमिक रिस्क जो एक मतलब इसके बाद बहुत सारे चेंजेस जो हमें आपका सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिले। अब यहां से अब आते हैं डायरेक्टली आपको किसके ऊपर, बेजल नॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। सो जैसे आप देख पा रहे होंगे BIS, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इट वाज फाउंडेड इन May 1930, ठीक है। May 1930 से लेकर अभी तक भी काम कर रहा है, ठीक है। सो स्विट्जरलैंड आपका देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बेजल, तो जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बेजल स्विट्जरलैंड जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, एंड द स्टोरी ऑफ BCBS, ठीक है, इसकी एक कमेटी है जिसको हम लोग आपका किस नाम से जानते हैं, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। BCBS इसकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कहां से, 1974 से, ठीक है। देयर इज अ रिस्क कॉल्ड हर्स्टेड रिस्क, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा हर्स्टेड रिस्क, which is something related to settlement risk, okay, settlement means that value date forex वाला, ठीक है। तो जो फॉरेक्स आपका जैसे मैंने आपको जब हमने फॉरेक्स पढ़ा था मॉड्यूल ए के अंदर,
तो वैल्यू डेट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इन दैट टाइम, ठीक है, देयर इज अ बैंक फ्रॉम फ्रैंकफर्ट जर्मनी दैट इज कॉल्ड हर्स्टेड बैंक। उसने आपका दे हैव टू मेक पेमेंट इन डॉलर, ठीक है। अब पहले क्या होता है ना, जैसे अभी आपका T+0 T+1 T+2 एंड फॉरवर्ड ऐसा आपका होता है, वैसे पहले थोड़ा सा और ज्यादा टाइम टेकिंग, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका नहीं था। तो जब हर्स्टेड बैंक को आपका डॉलर के अंदर पेमेंट करने थे, उसी दौरान जो आपका वैल्यू डेट के सेटलमेंट के दौरान जर्मन आपका जो रेगुलेटर था, उन्होंने क्या करा, हर्स्टेड बैंक को लिक्विडेट कर दिया, ठीक है। वो बैंक आपका लिक्विडेशन में चला गया। तो बहुत सारे बैंक आपका जिन्होंने डॉसमार्क रिलीज किया किसके अगेंस्ट, आपका हर्स्टेड बैंक के अगेंस्ट, तो वहां से कहीं ना कहीं आपका एक प्रॉब्लम जनरेट हुई। अब ऐसी प्रॉब्लम जो मतलब पहली बार और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कंसर्न समझ में आया कि यार आने वाले समय में अभी ऐसा हो सकता है और बैंकों के साथ भी, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अप्रोच किया बीआईएस को। बीआईएस ने एक 5 ग्रुप का एक कमेटी बनाया विच इज टुडे दैट इज परमानेंट ग्रुप ऑफ दिस बीसीबीएस, ठीक है। तो उन्होंने 5 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को स्टडी किया एंड उसके हिसाब से अभी आने वाले समय में, या जब भी बेसल 1 बेसल 2 बेसल 3 आपका ये जो आए हैं, या आने वाले समय में 4 आएगा, तो कहीं ना कहीं उसी स्टडी बेस पे आपका वो ग्रुप, उनके नीचे बहुत सारे सब ग्रुप्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। So on 26 June 1974, a number of banks had released DOSMARC to a bank Hersted in Frankfurt in exchange for dollar payment that were to be delivered in New York. ड्यू टू डिफरेंसेस इन टाइम जोन, ये बहुत बड़ा रीजन होता है सेटलमेंट के दौरान आपका, या सेटलमेंट रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं। देयर वॉज अ लैग इन डॉलर पेमेंट टू काउंटर पार्टीज बैंक, ड्यूरिंग विच बैंक हर्स्टेड वॉज लिक्विडेटेड बाय जर्मन रेगुलेटर। सो आपका बुंडेस बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, बिफोर द डॉलर पेमेंट कुड बी इफेक्टेड, ठीक है। तो ये आपका इसका इशू, ठीक है। तो इसी को हम लोग हर्स्टेड रिस्क के नाम से जानते हैं। सो सेटलमेंट रिस्क इन फॉरेक्स इज जनरली कॉल्ड हर्स्टेड रिस्क, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है, इसलिए स्पेशल नोट आपके लिए। तो इसके बाद आपका जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटर्स थे, दे हैव अप्रोचेस टू बीआईएस, एंड बीआईएस ने क्या किया, आपका ये अलग अलग ग्रुप बनाए, पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, बेसिक बेजल कंसल्टेटिव ग्रुप, इसके अलावा मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे जितने भी जो ग्लोबल इश्यूज आपके हैं उनको एड्रेस करने के लिए, या डेली बेसिस पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमीज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए, और क्या प्रिपरेशन होना चाहिए बैंक का, उसके लिए बीआईएस दे फॉर्म अ ग्रुप दैट इज लाइक, जो आपका इन 5 ग्रुप का मतलब 5 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जिनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिए गए, ठीक है, जो आज के डेट में बीसीबीएस के परमानेंट ग्रुप की तरह काम करते हैं। इनके नीचे बहुत सारे टास्क ग्रुप या अलग अलग आपका जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एरियाज को आपका स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। So the five committee group reported directly to BCBS chairman and form part of its permanent internal structure. Within each group, there are working group which support specifically technical work and task forces which undertake specific task for a limited time, ठीक है। तो these become permanent। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे आपके वर्किंग ग्रुप या टास्क फोर्सेस जो आपको टाइम टू टाइम इनके द्वारा आपका फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ही स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो अब यहां से बेसल का कहानी शुरू होगा, ठीक है। सो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस आई गेस, ठीक है। सो आपका जहां पे हेडक्वार्टर है किसका, बीआईएस का। So BIS established on 17th of May 1930 is the world oldest international financial organization. There are 2 representative office, one is in Hong Kong, another one is in Mexico, ठीक है। So फिर आपका जो BCBS है, उन्होंने जो 5 ग्रुप्स हैं, they conduct studies in different areas and then they come up with their first conclusion that and they come up with some set of guidelines कि जो अभी एट प्रेजेंट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके हिसाब से अगर हम कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका चला रहे हैं, सो दीज आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस को आपका कहीं ना कहीं मेंटेन करने चाहिए या उनको आपका ध्यान में रखना चाहिए, ओके। सो अब उन्हीं से आपका अगर हम लोग बात करते हैं, उन्हीं से आपका कहीं ना कहीं
जो हमारा बेसल वन आपका रिलीज हुआ, ठीक है। सो इन 1988 बेसल वन आपका आया था 1988 के अंदर। The Basel Committee on Banking Supervision introduced capital measurement system called Basel Capital Accord और Basel Accord 1, ठीक है। तो जो Basel 1 था उसका जो प्राइमरी फोकस था दैट वाज दिस, ठीक है, कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम आपका, ठीक है। बेसल 2 एंड बेसल 3 में बेसल 2 एंड बेस, जैसे हम लोग कैसे इसको लेके चलते हैं, बेसल 2 इज बेसिकली रिफाइंड एंड रिफॉर्म वे ऑफ बेसल 1 ओनली, ठीक है, या 3 इज रिफाइंड एंड रिफॉर्म वे ऑफ बेसल 2, और 2 में आपका बेसल पिलर इंट्रोड्यूस हुए थे, वो 3 में भी थे और आज भी हैं आपका, ठीक है। सो इट फोकस एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क, इट डिफाइंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेटेज फॉर द बैंक, ठीक है। तो जो बेसल 1 था आपका वो कहीं ना कहीं इनिशियली इट वाज एंटायरली फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट रिस्क के ऊपर आपके थे, बाद में इन 1996, ठीक है। सो 1996 आपका बेसल 1 अमेंडमेंट्स जिसमें मार्केट रिस्क को आपका इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो बेसल 1 आपका इनिशियली इट वाज ऑल अबाउट क्रेडिट रिस्क, बट बाद में आपका इसमें मार्केट रिस्क भी इंट्रोड्यूस किया गया। जो लिक्विडिटी रिस्क है या फिर आपका ऑपरेशनल रिस्क है, दीज गेट इंट्रोड्यूस इन बेसल 2, ठीक है। ये बेसल 2 से आपका इनकी एंट्री हुई थी। सो द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8%, ठीक है, जो बेसल के द्वारा आपका दिया गया कि जो भी आपका मतलब कैपिटल चार्ज व्हाइल वी कैलकुलेट कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, तो वो कैसे होगा आपका रिस्क वेट एसेट का 8%, ठीक है। जैसे आपका मतलब लेट्स से योर रिस्क वेट एसेट्स आर 1000 करोड़, ठीक है। सो अब 1000 करोड़ डिवाइड बाय, मतलब हम इसको निकालते कैसे, रिस्क वेट एसेट डिवाइड बाय योर CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, विच इज 8% दैट टाइम, ठीक है, इनिशियली आपका। सो 0.08 जो भी आपका निकलेगा दैट इज द अमाउंट विच बैंक नीड टू मेंटेन एज अ आपका जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्क वेट एसेट फॉर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर द क्रेडिट रिस्क। इस तरीके से आपका जो होगा, आई विल कम अप विद दिस पर्टिकुलर वन, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग रखा है। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन करूंगा जिसमें हम लोग आपका कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इनको अलग से स्टडी करेंगे एक जैसे पॉइंटर्स हैं, बट उससे पहले अगर आपको फंडामेंटल्स पता होंगे तो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। India adopted Basel I in 1999. Initially, RBI also come up with this 8% things, but later on RBI जो आपका नरसिम्हम कमेटी आपका, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी 1 which initially recommended 8%, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी 2 1998, 1 was 1991, so 1998 आपका जहां पे जो रिस्क वेट या CRAR जिसको हम लोग बोलते हैं आपका, ठीक है, दैट इंक्रीज टू 9%, ठीक है। आपका यहाँ पे 8%, इनिशियली हमने भी 8% के हिसाब से, बाद में हम उसको 9% किया गया, ठीक है, जो आज भी 9%, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है। इन इंडिया हाउएवर बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम capital to risk weight asset CRAR of 9% on an ongoing basis, ठीक है। So earlier it was 8% only, जैसे अगर आपने नरसिम्हम कमेटी 1 पढ़ा होगा तो वहां पे एसेट था, बट 2 में उन्होंने इंक्रीज करने के लिए बात किया गया, एंड देन RBI कम अप विद दिस पर्टिकुलर वन एंड उसको 9%, आज भी ये 9% है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% या CRAR इज 9%, एंड देन इसके अलावा आपका जैसे हम लोग एडिशनल आपका जो बफर्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, जैसे CCB आपका 3%, लिव आपका सॉरी CCB 2.5%, लिवरेज रेशियो 3%, सो उनके ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज डू रिमेंबर दिस। इनिशियली बेसल 1 इज ऑल अबाउट क्रेडिट रिस्क, कैपिटल एडिक्वेसी ओनली, ठीक है। इन 1996 अमेंडमेंट, ठीक है, तो जहां पे इसमें आपका बेसल 1 के अंदर आपका अमेंडमेंट्स किए गए, एंड वी with this inclusion it was all about the inclusion of market risk, ठीक है। So 1996 market risk amendment introduced and split capital cuisine for the market risk for which bank are exposed because of their trading in equities, debt securities, foreign exchange, commodities, option, etc. allowed to bank to use their internal rating model to estimate their market risk also, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आपका मार्केट रिस्क का इंक्लूजन किया, ठीक है, एंड मार्केट रिस्क के अगेंस्ट में भी आपका कैपिटल कुजीन मेंटेन करने की बात की गई, या जो आपका CAR काइंड ऑफ, मतलब यू हैव टू मेंटेन सम
कैपिटल चार्ज अगेंस्ट दी क्या आपका जो मार्केट रिस्क है वो पहली कैपिटल चार्ज था सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क के लिए 1996 के अमेंडमेंट में आपका ये भी इंक्लूड हुआ, ठीक है। सो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं आपका जैसे द अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्टिव इन 1998, मतलब 1996 में ये आपका पब्लिश किया गया, एंड 1998 के अंदर इट बिकम इफेक्टिव, प्लीज डू रिमेंबर दिस। तो क्या कहते हैं, अलाउ बैंक टू यूज प्रोप्राइटरी इन हाउस मॉडल फॉर मेजरिंग मार्केट रिस्क। अब यहाँ पे उसने बोला आप खुद का एक मॉडल बनाओ जिससे आप क्या कर सकते हैं आपका कैपिटल चार्ज अगेंस्ट मार्केट रिस्क, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ आरबीआई अप्रूवल या जो भी उनका सेंट्रल बैंक है उसका। बैंक यूजिंग प्रोप्राइटरी मॉडल मस्ट कंप्यूट वार वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। वार इज मतलब वार जनरली यूज किया था आपका कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। जब मैं आपको कैपिटल चार्ज वाला सेशन लेके आऊंगा तो वहां पे वार को हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेजर मेथड, ठीक है। तो जिसमें आपका मोंटे कार्लो सिमुलेशन आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड एंड वन अनदर। तो ये जो आपको ये बताता है कि इट वार आपको जनरली क्या बताता है, ये जैसे पास डेटा, डाउनसाइड पोटेंशियल्स और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, इनके हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या हो सकता है, दैट इज जनरली दैट इज द आउटकम ऑफ वैल्यू एट रिस्क आपका बार का, ठीक है, वार का, ठीक है। So using 99 percentile one tailed confidence interval with a time horizon of 10 trading days using a historical observation period of last 1 year, ठीक है। तो इन्होंने 99% के कॉन्फिडेंस लेवल पे, एंड वन इज like it can be 99, it can be 95 as well, 96 as well, ठीक है, but 1% you have to keep, you cannot say कि like we are 100% confidence about this, ठीक है। तो 1% का बफर इज ऑलवेज दिया, ठीक है। एंड 10 डेज का हॉरिजन पे आपका इस तरीके से कैलकुलेशंस करना आपका सजेस्ट किया गया, ठीक है। The capital charge for a bank that use a proprietary model will be the higher of the previous days var and the 3 time of average of next last 60 business days, ठीक है। तो आप जो अपना कैपिटल चार्ज मेंटेन करोगे, जो वार आपने डेवलप किया उससे क्या क्या होगा उसमें, पहला देखो क्या हो रहा है, मतलब इट विल बी हायर देन प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे वार, एंड 3 टाइम ऑफ द एवरेज डेली वार ऑफ प्रीसीडिंग 60 वर्किंग डेज ऑफ बिजनेस डेज, ठीक है। तो जिनके हिसाब से यू हैव टू मेंटेन द कैपिटल कुजीन और वी कैन से कैपिटल चार्ज फॉर द मार्केट रिस्क। Use of back testing ex post companies between model result and actual performance, which also called a model validation, to arrive at the plus factors that is added to the multiplication factors. Allow bank to issue a short-term subordinated debt subject to a lock-in clause, tier 3 to meet a part-time market risk. Their subordinated debt is basically they get secondary priority at the time of liquidations, ठीक है। तो इन्होंने short term debt आपका, and you can use those particular instruments for to protect, or like it is I guess right now it is 250% of your tier 1 capital, that was 250% or something of the tier 1 capital or 50% of your tier 1 capital, will come to those guidelines also, ठीक है। तो ये आपका जो कहीं ना कहीं, और इनको जैसे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यू आर जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। कैपिटल चार्ज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है। सो आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड यूनिट और डेडिकेटेड वीडियो बेस्ड ऑन दैट वन, तो जहाँ पे आपको ना कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस एंड अदर्स हैं, अगर उनको मिक्सअप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ठारा, ठीक है। चलो देन बेसल 2 आपका, तो बेसल 1 आपका इट इज ऑल अबाउट द कैपिटल चार्ज। Initially, it was about credit risk. Then later on, 1996 amendments that include market risk also, which become effective from 1998. So, a Basel 2 जहाँ से operational risk, आपका liquidity risk, and they also get introduced in this one. So, in 2004, Basel 2 guidelines were published by BCBS, which were considered to be reformed and refined way of Basel 1, ठीक है। तो जो Basel 1 में चीजें थी वही उनको आपका और ज्यादा पॉलिश किया गया, जैसे जैसे रिस्क लेवल जहां इंक्रीज हुआ तो वहां पे उनको इंक्रीज किया गया, ठीक है। और यहीं से आपका इंट्रोडक्शन हुआ पिलर्स का, ठीक है, जो पिलर्स ऑफ बेसल 2 इनको बोलते थे, आज हम इनको पिलर्स ऑफ बेसल के नाम से जानते हैं। सो वी हैव 3 पिलर्स। वन इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो आपका पिलर 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सॉरी बेसल 1 में। देन वी कम अप विद सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, एसआरपी, एंड मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। ये दो आपका इसमें इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है।
सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस अंडर दिस वी हैव 4 प्रिंसिपल्स और यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज लाइक जैसे अब इसका सीक्वेंस कैसे काम करेगा. सो बैंक नाउअडेज दे हैव टू मेंटेन देयर कैपिटल एज पर पिलर 1. ठीक है, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड देन सुपरवाइजर विल रिव्यू देम एज पर दिस कि इसमें जो गाइडलाइंस हैं, जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, जो चेकलिस्ट हमने बनाया वो बैंक प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. दैट विल बी सुपरवाइज्ड बाय द रेगुलेटर्स. अगर वो नहीं कर रहा है, अगर जो मिनिमम लेवल है उनसे नीचे आ रहा है, सो दे विल टेक सुटेबल एक्शन. ठीक है. तीसरा आपका मार्केट डिसिप्लिन. दैट मींस आपका मार्केट डिसिप्लिन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सो मार्केट डिसिप्लिन इज सिंपली आपका कि जो आपने अगर यहाँ पे जो करें, जैसे जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे आपका लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर आपके जो डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी पोजीशंस के ऊपर आपके जो डिस्क्लोजर्स हैं या अदर्स जो आपके डिस्क्लोजर्स हैं, दे विल बी एट फॉर दिस वन, कि जिससे सारे स्टेक होल्डर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले. ठीक है. सो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. सो the capital base of the bank consists of following three type of capital elements. These are known as tier 1, tier 2 and tier 3. So combination of tier 1, tier 2, tier 3 is known as capital base. Tier 1 is core capital of the bank. Okay. So the sum of this is element will be eligible for inclusion in the capital base subject to. अब जो tier 1 है that is core capital, इससे आपका अगर आपकी जो कोर कैपिटल वो डिसाइड करेगी आपका टीयर 2 और टीयर 3 कैपिटल कितना होगा. जैसे टोटल ऑफ टीयर 2 सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 100% ऑफ टीयर 1 एलिमेंट. ठीक है, जितना आपका टीयर 1 एलिमेंट होगा उसका मैक्सिमम 100% क्या हो सकता है आपका टीयर 2 हो सकता है. मतलब इट कैन बी लेस देन इक्वल टू. ठीक है, जैसे अगर 100 करोड़ है तो ये 100 करोड़ हो सकता है या आपका 80 करोड़. इट कैन नॉट एक्सीड टू योर टीयर 1 कैपिटल. पहला. दूसरा, सबऑर्डिनेटेड डेट. हाँ, इट वाज 50% ओनली. जैसे क्वेश्चन था ना पीछे आपका जो हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेटेड डेट दे कैन इशू, सो दे कैन इट वाज 50% ऑफ देयर टीयर 1 एलिमेंट. ठीक है. सो सबऑर्डिनेटेड डेट विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ टीयर 1 एलिमेंट. अब 100 करोड़ उसकी अगर आपका टीयर 1 एलिमेंट से, तो दे कैन इशू अ सबऑर्डिनेटेड डेट अप टू मैक्सिमम 50%, दैट मींस 50 करोड़. ठीक है. तो एंड दे कैन यूज दैट अमाउंट टू लाइक कैपिटल चार्ज अगेंस्ट मार्केट रिस्क, जैसे वहां पे आपका कैपिटल चार्ज में बात किया गया, अदर रिस्क ऑल्सो. टीयर 3 कैपिटल आपका विल बी 250% ऑफ बैंक टीयर 1 कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मार्केट रिस्क ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे टीयर 3 कैपिटल में आपका जैसे बॉन्ड्स हैं या अदर्स हैं, तो इट कैन बी मैक्सिमम 250% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल. ठीक है, तो ये मेजर आपका जिनको थोड़ा सा आपको अभी याद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आप बार बार इनको देखेंगे तो हेल्प करेंगे. इन एडिशन, where general provision, general loan losses reserve include amount reflecting lower valuation of asset. जैसे जो प्रोविजंस हम लोग बनाते हैं एनपीएस या अदर्स किसी भी डिफॉल्ट के अगेंस्ट, एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व which take the form of latent gain on unrealized securities will subject to a discount of 55%. So these are some major guidelines regarding the आपका कैपिटल बेस. ठीक है, कैपिटल बेस. अब दूसरा हमारे पास है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस. अगेन 4 प्रिंसिपल बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, किसमें आपका मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सुपरवाइजर का होगा, बैंक का होगा, इस तरीके से भी पूछा गया पास्ट में. ठीक है, तो उनके ऊपर आएंगे. दिस सेक्शन डिस्कस द की प्रिंसिपल सुपरवाइजरी रिव्यू, रिस्क मैनेजमेंट गाइडेंस एंड supervisory transparency and accountability produced by the committee with respect to banking risk. So we have 4 principle. प्रिंसिपल 1 आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा अब देखो क्या है ना, यहाँ से ये आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसल प्रिंसिपल. अब यहाँ से लेके आपका आखिरी यूनिट तक आपको बहुत सारे प्रिंसिपल मिलेंगे. जैसे अगर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट 13 प्रिंसिपल, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट 11 प्रिंसिपल, या ये ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको मिलते रहेंगे. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको बिल्कुल रट्टाफाई में जाओ, बट हाँ यू कैन मेक अ नोट, इवन आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर नोट. बट एग्जामिनेशन टाइम पे ना उनके ऊपर मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं. इवन जो मैंने पास्ट में सेशन लिए तो उसमें भी मैं बार बार इनको कराता हूँ, क्योंकि आपको कई बार ऐसा भी फील होगा, कई बार पेपर में ऐसा हुआ कि वो बेसल प्रिंसिपल 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 ही बोलता रहा पूरे पेपर में. ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। तो थोड़ा सा उनका आप नोट मेकिंग कर सकते हैं या उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो बैंक, पहला प्रिंसिपल जो कि किसके लिए है, आपका बैंक के लिए है, ठीक है। बैंक के लिए क्या है कि जो आपको टीयर 1 के अंदर बातें बोली गई हैं उस स्टेटस को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। सो बैंक शुड हैव अ प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिकेसी। जो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको असेस करने के लिए यू नीड टू बिल्ड अ प्रोसेस और काइंड ऑफ सिस्टम और मॉडल in relation to their risk profile and strategy for maintaining their capital level, ठीक है। तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स है और आपकी बैंक की पोजीशन, तो उसके हिसाब से आप सही ढंग से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रिस्क वेट एसेट आपका 9% है, तो हम 9% से कितने ऊपर है, वो सारी चीज़ें आपका जो, उसके लिए आपको यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम प्रोसेस। तो दिस प्रिंसिपल बिलोंग्स टू बैंक। दूसरा प्रिंसिपल टू विच जनरली बिलोंग्स टू सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर मीन्स आपका जैसे आरबीआई इंडिया के केस में, सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवेल्युएट बैंक इंटरनल capital adequacy assessment and strategies, as well as their ability to monitor and ensure their compliances with regulatory capital ratios. Supervisor should take appropriate supervisory action if they are not satisfied with the result of this particular process, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने प्रोसेस बनाया that should be चेक्ड बाय दी रेगुलेटर्स, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि यार गड़बड़ है, इसमें कुछ खामियां हैं, इससे काम नहीं चलेगा, सो दे शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर। तीसरा प्रिंसिपल 3 विच बिलोंग्स टू सुपरवाइजर एज वेल एज बैंक, जहां पे बैंक दे हैव टू मेंटेन दैट मिनिमम लेवल एंड सुपरवाइजर विल मेक श्योर कि हाँ वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सो प्रिंसिपल 3 आपका supervisor should expect bank to operate above the minimum regulatory capital ratios and should have the ability to require bank to hold capital in excess of the minimum level, ठीक है। Principle 4 again to supervisor. Supervisor should seek to intervene at early stage to prevent capital falling below the minimum level, ठीक है। तो यहाँ पे कि जो अर्ली रेमेडियल एक्शंस हैं दे आर ऑलवेज हेल्पफुल इन एनी केस, ठीक है। तो यहाँ पे यही सुपरवाइजर्स को भी एडवाइस किया गया कि अगर कोई भी बैंक, यू हैव टू कीप अ प्रॉपर टैप ऑन दोस लाइक ईच एंड एवरी बैंक। अगर कोई भी बैंक आपका मिनिमम लेवल से नीचे जा रहा है, सो यू हैव टू टेक एक्शंस, इमीडिएट एक्शंस, जिससे आपको कि कल के डेट में कोई बड़ा डिफॉल्ट हो उससे आपका बैंक को बचा सके और उसके डिपॉजिटर्स को बचा सके, ठीक है। Required to support the risk characteristics of the particular bank and should require rapid remedial action if capital is not maintained or restored, ठीक है। तो ये 4 प्रिंसिपल एसआरपी, ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा इस आपका मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। तो मार्केट डिसिप्लिन अगर इसके ऊपर ना देयर इज अ यूनिट जहां पे सारे प्रिंसिपल्स आपके हैं, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। बट हाँ, जैसे जैसे आपका लिक्विडिटी रिपोर्ट, यू हैव टू सबमिट 5 टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिपोर्ट टू आरबीआई। जैसे आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन आईएनआर के अंदर फोर्टनाइट, आपका फॉरेन ऑपरेशन आपका जो फॉरेन करेंसीज के अंदर अगेन फोर्टनाइट, या ऐसे आपका 5 रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड जो क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्टेटस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अदर्स ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आपका जो विच बैंक दे हैव टू सबमिट विद आरबीआई, या जैसे बीसीबीएस के यहाँ पे 5 प्रिंसिपल हैं कि योर डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, मीनिंगफुल, इट शुड बी कंपेरेबल, और देयर वाज वन मोर, ठीक है। तो ये ऐसे 5 प्रिंसिपल उन्होंने आपका दिए हुए हैं। सो इट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पहला, आपका गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर देयर, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी रिस्क के संबंध में देयर आर 13 प्रिंसिपल, ऑपरेशनल रिस्क के संबंध में देयर आर 11 प्रिंसिपल्स या अदर्स, अचीविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स आल्सो, ठीक है। एंड यू हैव टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर वन ऑन बैंक वेबसाइट और आपका रेगुलेटर्स, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब आता है हमारा बेसल 3 आपका, ठीक है। बेसल 3, सो 2010 पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो लर्निंग्स थी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो सितंबर 2008 आपका, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज आपका जो 2007-8 था, इट इज मोर टुवर्ड टू लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो बैंक आपका इलिक्विड हो गए बिकॉज उनके पास एसेट है, उन एसेट को कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है।
सो मतलब जैसे घर खरीदा, बायर ने, उसका पैसा नीचे हुआ, उसने सरेंडर कर दिया। नाउ जो हाउसेस थे उनको कौन ओन कर रहा है? बैंक ओन कर रहा है। एंड वी डू हैव एसेट, फिजिकल एसेट, where there is no buyer for those particular one. That means bank are like they won't be able to liquidate their asset, right? So आपका ये प्रॉब्लम हुआ। तो लिक्विडिटी रिस्क के संबंध में ना सितंबर 2008 के अंदर आपका ये 13 प्रिंसिपल की जो मैं बात कर रहा था, इसके अलावा भी और बहुत सारे जैसे ऑपरेशनल रिस्क के संबंध में अदर्स वो बीच में आपका आए थे। देन फाइनली दे कम अप विद अ क्लियर कट डिस्क्लोजर सेट ऑफ गाइडलाइंस इन 2010 that is known as Basel 3, ठीक है। So Basel 3 December 2010 is the third in the series. The accord deal with the market risk management aspect of banking sector. So we can say that the global regulatory standard on banking capital adequacy, स्ट्रेस टेस्टिंग। अब यहाँ पे आया एक नया चीज, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई ना 7-8 की, तो वो आपका, इसके अलावा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क आपका, ठीक है, जिसका यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो मतलब ये मेजर आपका चैलेंज जो हमने फेस किया था वो। तो अगेन आई एम सेइंग कि बेसल 3 इज रीफाइंड एंड रीफॉर्म वे ऑफ बेसल 2 ओनली, ठीक है। जैसे बेसल 2 पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। पिलर 2 आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पिलर 3 disclosure disclosure and market discipline. Now if you see pillar 1 enhance minimum capital requirements and liquidity requirements, pillar 2 आपका enhance supervisory review process for firm wide risk management, आपका थर्ड इज एनहेंस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। सो अगेन सेम चीज, बस जिस तरीके से जो नए नए एक्सपीरियंसेस आपका उस ग्रुप ने किए या जो जिनकी वजह से और जो चैलेंजेस आ सकते हैं उन चैलेंजेस को स्टडी किया गया और क्या बदलाव लाने की जरूरत है सिस्टम के अंदर वो आपका यहाँ पे सजेस्ट किया गया, ठीक है। तो उनके संबंध में गाइडलाइंस आपका रिलीज किया गया। तो अगेन वी हैव दीज 3 पिलर्स, ठीक है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आरबीआई आपका आरबीआई इशू गाइडलाइंस ऑन बेसल, RBI issue guidelines on Basel 3 on May 2nd 2012 एंड 2013 से ये लागू होना इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इनके टारगेट बहुत बार एक्सटेंड किए गए, जैसे 31 मार्च 2019 वाज द फर्स्ट डेडलाइन, बट फिर कुछ समय के बाद आपका कोविड आया, एक्सटेंड होते होते नाउ डेज इट इज ऑलमोस्ट आपका 10, ठीक है। सो एम ऑफ बेसल 3 क्या क्या मेजर थे? बेसल 3 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये करंट आपका है, ठीक है, जो अभी मार्केट में इंप्लीमेंटेड है। सो इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब अप एंड डाउन अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। तो ये जो अप एंड डाउन आपके चलते हैं इनको बैंक कैसे ऑब्जॉर्व करे वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज आपका ना, अगर आपने कभी ये डिटेल में पढ़ा होगा, देयर वर सम बैंक, जैसे बैंक्स फ्रॉम स्पेन और सम अदर नॉर्डिक नेशंस आल्सो, ठीक है। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो दुनिया भर के अंदर रिसेशन हुआ, बट वहां के बैंकों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। रीजन, दे यूज टू मेंटेन सम एडिशनल बफर ड्यूरिंग देयर गुड टाइम, ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे अपने अच्छे समय में अपने बुरे समय के लिए पैसा बचा के रखो, वहां पे वो उन्हीं से हमने सीखा आपका, जैसे आपका काउंटर साइक्लिकल बफर, ठीक है, जो निकला वहां से कि इन योर गुड टाइम यू विल मेंटेन मनी फॉर योर बैड टाइम, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीजें आपका, ठीक है, या आपका जैसे एक एडिशनल लेयर आपका दिया गया रिस्क कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, दैट इज आपका रिस्क आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीबी, एंड आपका लिवरेज रेशियोज आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आपका जो रहेंगे, ठीक है। तो एडिशनल लेयर मतलब क्या होगा, लाइक लेट्स से दिस इज योर सीएआर जो सबसे पहले आपका बेसल 1-2 में था। नाउ वी हैव सम एडिशनल लेयर आल्सो, ठीक है। तो अगर कुछ भी होगा, फर्स्ट ये ब्रीच होंगे, फिर ये ब्रीच होगा, देन आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो यहां तक हमें टाइम मिल जाएगा। या इसके अलावा जैसे एलसीआर, लिक्विडिटी आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, सबसे पहले आपका ये रहेगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसमें हम लोग मतलब क्लियरली बोला गया बीसीबीएस के द्वारा कि आपके बैंक को इतना कैश मेंटेन करना है या इतनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कि आपके पास आपका जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एनी टाइम इन एनी सिचुएशन,
तो उनका एक आपको कुजीन एक बफर मेंटेन करके रखना है विद रिगार्ड टू 30 डेज लाइबिलिटीज, आपकी जो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर लाइबिलिटीज है उसको, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम की विद इन 30 डेज वी कैन कम आउट विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। कितना भी आपका पावरफुल सिचुएशन दुनिया भर में आया है तो 30 दिन में बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें निकला जा सकता है। बट इसी के लिए जैसे एलसीआर है या आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है, उनका रेशियो क्या होता है, आपका 30 डेज कैलेंडर डेज में एलसीआर काउंट होता है आपका 100%, कि जितना 30 डेज में अगर आपकी लाइबिलिटीज है सपोज दैट 50 करोड़, तो 50 करोड़ एट ए टाइम आप अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट मेंटेन करके रखो, जिससे प्रॉब्लम आएगी तो आप वहां से उस पैसे को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो ऐसे एडिशनल लेयर्स आपका जो बनाए गए टू प्रोटेक्ट दी बैंक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, स्ट्रेंथन बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, इसके अलावा बेटर क्वालिटी कैपिटल क्वालिटी, ठीक है। सो वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ बेसल 3 is introduce of this such strict definition of capital. Better capital quality means the higher loss of absorbing capacity. This in turn will mean that bank will be stronger, allowing them to better withstand period of stress, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम अच्छे रंग से आपके खड़े रह पाएंगे, ठीक है। एंड कैपिटल कन्वर्जन बफर सीसीबी, दिस इज काइंड ऑफ एडिशनल लेयर जस्ट बिहाइंड योर CAR, ठीक है। तो जैसे हमारा आपका CAR इज 9% इंडियन रेफरेंस में बात करें, ठीक है, आई मेंशन हियर, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन रेफरेंस में देन देयर इज अ आउटलाइन व्हिच इज नोन एज CCB, कैपिटल कन्वर्जन बफर, ठीक है, कितने का 2.5% का। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, वी हैव टू मेंटेन कैपिटल ऑफ 11.50%। क्यों 11.50% या 11.50% कैसे होता है, 10 + 10 आपका, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब क्या होगा, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, कुछ भी गलत से बुरा होगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले अटैक इस पे होगा, ठीक है। ये ब्रीच होने में कुछ तो टाइम मिलेगा हमें, यहां तक पहुंचने में विल हैव दैट टाइम। या जैसे कोई भी बैंक आपका जब उसका ये ब्रीच होगा, सो आरबीआई विल टेक देयर एक्शन कि भैया आप गड़बड़ जा रहे हो, अब यहां से अगर नहीं सुधरोगे तो मामला आपका सॉर्टेड है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएंगी चीजें। So another key feature of Basel III that now bank will have to require to hold a capital conversion buffer of 2.50%. The aim of asking to build a conversion buffer to ensure that bank maintain a cushion of capital that can be used to absorb losses during a period of financial and economic stress. Or stress is basically स्ट्रेस टेस्टिंग आपके उसमें है, ठीक है। सो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है या स्ट्रेस होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है। दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड जिनके अगेंस्ट में हम अपने प्रोविजन बना करके चलते हैं, ठीक है, बट देयर आर सम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिनकी वजह से नुकसान हो जाए, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे कोविड लाइक सिचुएशन, जैसे आपका द ग्रेट डिप्रेशन, तो जो मतलब हमने कभी सोची नहीं, हमारी सोच से बियॉन्ड है, उन सिचुएशंस को मैं आपको ऐसी चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो एक्सपेक्टेड है उनके लिए तो हम ऑलरेडी प्रोविजन बना करके चल रहे हैं, राइट। चलो, मिनिमम कॉमन इक्विटी एंड टियर 1 requirement. So the minimum requirement of common equity that higher from loss absorbing capital has been raised under the Basel III from 2% to 4.50% of total risk weight asset. एक और चेंज आपका द ओवरऑल टियर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ not only common equity but also other qualifying financial instrument will also increase the minimum of 4% to 6%, ठीक है। तो ये दूसरा चेंज, तीसरा चेंज हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा लिवरेज रेशियो आपका 3% का, ठीक है। सो लिवरेज रेशियो, so a review of financial crisis 2008 has indicated that value of many asset fell quickly, ठीक है, जैसे वो गुड टाइम में अच्छा वाला जो है ना, ठीक है। सो अब जैसे हाउसिंग बबल हुआ तो बड़ा तेजी से उतनी उसके कई मल्टीपल तेजी से आपका गिरा, ऐसा बहुत बार होता है आपका, कुछ कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं बहुत तेजी से रॉकेट स्पीड में, बट वो जब गिरते हैं ना तो वो रॉकेट वाला होता है, चंद्रयान वाला एकदम सीधा, ठीक है। So, quicker than assumed from the historical experiences. Thus, Basel III result include of leverage ratio of serve
to serve as safety net. This aim to put a cap on swelling of leverage in the banking sector on a global basis. 3% of 3% leverage ratio of tier 1 will be tested before mandatory, and this is ऑलरेडी टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, तो अब क्या है, एक और एडिशनल लेवल. ठीक है, तो आपका CAR है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, या CRAR. देन आपका कैपिटल कन्वर्जन बफर है, ठीक है, CCBs. देन आपका उसके बाहर एक और लेयर हमने लगा दिया है लेवरेज रेशियो का. अभी इसके बाहर एक दो लेयर और लगाएंगे. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली दिस इज अ सेफ्टी नेट आपका. ठीक है, तो अब ब्रीच होगा, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, तब हम यहाँ पहुंचेंगे. तब तक टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा. अगर आपका रेगुलेटर सो रहा है वो बात अलग है. ठीक है, अदरवाइज आपका बचाया जा सकता है. लिक्विडिटी रेशियोज, अब एक और एडिशनल लेयर, एक नहीं दो आपका. ठीक है, बैंक वाइड लेवल पे, एंड दे गेट मेंटेन एट 100%, मतलब डाउन साइड 100 और मोर देन 100 आपका होना चाहिए. ठीक है, so based Basel 3, a framework of liquidity risk management will be created. A liquidity coverage ratio LCR and net stable funding ratio are to be introduced in 2015 and 18, which get implemented in this system as well. ठीक है, तो LCR आपका liquidity coverage ratio, ठीक है, पहला जिसको हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, how we calculate this particular one, it is आपका unencumbered high quality liquid asset divide by your net cash outflow in 30 calendar days into 100 परसेंटेज में, एंड योर रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%. ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे. सो LCR आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. वैल्यू ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, अब कहीं कई जगह पे इनके आगे लिखा रहेगा अनइनकम्बर्ड, मतलब ऐसे एसेट जिनको कहीं पे भी हमने प्लेस हाइपोथिकेशन नहीं किया है. ठीक है, सो दीज आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जब जरूरत पड़ेगी तब कैश में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, और डिवाइड बाय नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, कि अगले 30 दिनों के अंदर जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको मीटअप करने के लिए. मतलब इसका आउटकम क्या है कि बैंकों के पास इतना पैसा होना चाहिए एटलीस्ट डाउन साइड, कि जिससे अगले 30 दिन की ऑब्लिगेशन से वो मीटअप कर सकें. ठीक है, रेगुलर बेसिस पर आपका, एंड एट ए टाइम यू हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो जैसे किसी बैंक की लाइबिलिटी आपका नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज के अंदर सपोज दैट है 100 करोड़ की. ठीक है, 100 करोड़ की आपका, सो उसके अगेंस्ट में दे हैव टू मेंटेन अ कुजीन ऑफ अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, दैट इज इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़. ठीक है, तो तभी आपका 100% या उससे ऊपर जाएगा. ठीक है, तो अगर कल के डेट में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, सो यू विल गेट 30 डेज. आपके पास क्या होगा, 30 दिन का समय मिलेगा उस प्रॉब्लम को समझने के लिए और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए. सो दिस इज द आइडिया. एंड ये आज के डेट में अगर इंडियन रेफरेंस में आप बात करते हैं, सारे बैंक इसको आपका मेंटेन करते हैं. राइट, सो पहला आपका. दूसरा हमारे पास एक और जो आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसका ड्यूरेशन इज 1 ईयर. ठीक है, जैसे LCR इज फॉर 30 कैलेंडर डेज, इट इज फॉर 1 ईयर. ठीक है, जो जैसे आपके सोर्सेज ऑफ फंड हैं उससे हम एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जो आपके नेट पेबल्स हैं विद इन 1 ईयर्स के अंदर, तो उनके लिए सोर्स अवेलेबल है या नहीं है, तो लिक्विडिटी तभी तो प्रोटेक्ट होगी ना. तो 1 साल का आप लेके चलो यहाँ पे. सो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग टीम, सो अवेलेबल सोर्सेज ऑफ स्टेबल फंडिंग डिवाइड बाय रिक्वायर स्टेबल फंडिंग. ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100. अगेन आपका ये. ठीक है, ये रेशियोज के ऊपर केस स्टडीज न्यूमेरिकल्स आपको बहुत बार मिलेंगे, और हम इनको और दोबारा से पढ़ेंगे विद आपका जहां पे हमारे पास मॉड्यूल डी आपका बैलेंस शीट, जहां पे लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, या फिर इवन इन मॉड्यूल सी बी ओनली आपका एक बार दोबारा से आएंगे. ठीक है, आई गेस इन मॉड्यूल डी ओनली, जहां पे काफी डिटेल में दिए गए. ठीक है, तो हम इनको वहां पे विद केस स्टडीज भी स्टडी करेंगे. ठीक है, सो डिफरेंसेस क्या है, आई होप नाउ यू गेटिंग दिस आइडिया. ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग NSFR की बात करते हैं, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो की टीम, सो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग जैसे लोन्स हैं आपके. ठीक है, इसके अलावा सॉरी पेमेंट अकाउंट से आपका सेविंग अकाउंट है, अदर डेट है, इक्विटी है, लाइबिलिटीज है. एंड रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग आपका लोन है, अदर एसेट है, CB रिजर्व है, या एसेट्स आपके. ठीक है, इनके हिसाब से जो मेंटेनेंस आपका हो. ठीक है, जैसे फैक्टर्स अगर दोनों का डिफरेंस देखें, इट इज फॉर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, इट इज फॉर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, बोथ आर रिलेटेड टू लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट. इट इज फॉर 30 days एंड इट इज फॉर 12 months. ठीक है, तो ये जो
अवेलेबल सोर्सेज और रिक्वायर्ड सोर्सेज हैं, दीज आर वी जनरली कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। लिक्विड एसेट एंड बोथ लिक्विड एंड नॉन लिक्विड एसेट, बिकॉज यहाँ पे 12 मंथ्स का और उसके बाद का भी जो मेच्योरिटीज के ऊपर, लाइक जब हम लोग मॉड्यूल डी में आता है गेस ये, तो वहां पे हम लोग ना, आई विल शो यू द लिस्ट ऑल्सो, कौन कौन से एसेट आपका, व्हाट डज इट मीन बाय अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, व्हाट कम अंडर दिस पर्टिकुलर वन, या इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलो, अब अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट, वी हैव सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8, वहां से एक और चीज हमने सीखी कि कहीं ना कहीं जैसे लाइक हमने रिपल इफेक्ट समझा, हमने सिस्टेमिक रिस्क आपका फेस किया, तो अब हमने ये चीज समझा यार कि हर एक इकोनॉमी के अंदर देयर आर फ्यू बैंक्स और फ्यू इंस्टीट्यूशन हु लीड द एंटायर सिस्टम, ठीक है। जैसे इंडिया में कौन से हैं, SBI, ICICI, SDFC, एसेट वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, इवन PNB एंड अदर दे आल्सो हैव वेरी गुड एसेट, ठीक है। तो अभी ये इस बकेट में DSIP जिसको हम लोग बोलते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, तो दीज आर द 3 बैंक्स जो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर इनको कुछ हो गया या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी और वहां पे अगर ये प्रोटेक्ट नहीं हुए, तो सारा सिस्टम आपका कोलैप्स होने के चांसेस हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया यूएस में 2007-8 के अंदर। तो इसलिए आप क्या किया गया, ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडिशनल कैपिटल मेंटेन करने के लिए बोला गया, जो आपको नवंबर दिसंबर में पूछा गया था, ठीक है, तो उस पर भी आएंगे। सो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, as a part of macroprudential framework, systematically important banks will be expected to have loss absorbing capacity beyond the Basel III requirements. Options for implementation include capital surcharge, contingent capital and bail-in debt आपका, ठीक है। तो ये इनके लिए आपका ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। तो यू अब लाइक जैसे आप बड़े बैंक हो तो आपकी रिस्पॉन्सिब मतलब आपका डिफॉल्ट हम आपका मतलब सहन नहीं कर सकते इकोनॉमी, तो आपको कुछ एडिशनल कैपिटल मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। कि मतलब जो नॉर्मल सबके लिए वो तो है ही, इसके अलावा कुछ एडिशनल जिससे आपका प्रोटेक्शन एडिशनल लेयर्स आपके पास लग जाएं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, आई टुक इट फ्रॉम RBI वेबसाइट ओनली, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं आप, सो एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेट एसेट, आपका जैसे 18-19 के बाद था, और उसके बाद आपका जैसे ये आपका एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, जो लास्ट आपका चेंज था उसी में, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, पहले ये था बट अभी आप उस पर फोकस करें, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन, और ये पूछा जाता है, जैसे 3 बैंक हैं, जैसे आपका दीज आर बकेट्स, देयर आर 5 टाइप ऑफ बकेट्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो आपका बकेट 1 के अंदर अगर हम लोग बात करें, दिस बाइफरकेशन इज गिवन बाय BCBS, उसने बोला एडिशनल कैपिटल के 5 टाइप के बकेट्स होंगे, जिसमें इंडियन बैंक्स की बात करते हैं तो आपका ICICI एंड SDFC दे कम अंडर द बकेट 1 एंड SBI दैट जनरली कम्स अंडर द बकेट 3, ठीक है। तो जो बकेट 1 में आपके आएंगे, दे हैव टू मेंटेन 0.20 एडिशनल कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द रिस्क वेट एसेट, ठीक है। जैसे रिस्क वेट एसेट आपका अगर हम लोग बात करें 9% है नॉर्मल बैंक के लिए, तो जो बकेट 1 में ये 2 बैंक है इनके लिए कितना हो जाएगा, 9.20%। वहीं आपका SBI के लिए कितना हो जाएगा, फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 0.60%, ठीक है। तो ये एडिशनल लेयर आपका जो बनाएगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज को सॉल्व करने में। इस देयर वाज अ डिट्टो क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लाइक जो अक्टूबर नवंबर 23 पेपर आपका हुआ था उसमें, ठीक है, इन्हीं के ऊपर आपका जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। चलो, तो रिक्वायरमेंट सॉरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अंडर बेसल 3 समराइज कर देता हूं जल्दी से। सो वी हैव रेगुलेटरी कैपिटल, अगर हम लोग बात करें मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 आपका 5.50%, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नाउ इंडियन बैंक्स दे हैव टू मेंटेन 11.50%, इसमें लिखा भी होगा कहीं, हाँ ये मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस कैपिटल कन्वर्जन बफर आपका 11.50% जो आपका बैंकों को मेंटेन करना होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल कन्वर्जन बफर आपका CCB 2.5, इसके अलावा मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 नाम रेशियो प्लस कैपिटल कन्वर्जन बफर 8% आपका, ठीक है। इन दोनों का एडिशन आपका सिंपल सा, एडिशनल टियर 1 कैपिटल 1.50%, मिनिमम टियर 1 कैपिटल रेशियो 10 प्लस 10 आपका 7.5, टियर 2 कैपिटल आपका 2% एंड मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन इज
मतलब अगर वैसे बनाओगे तो 9% एंड ओवरऑल आपका 11.50%, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये रहेगा। एंड हाउ विल कैलकुलेट कैपिटल चार्ज, तो कैपिटल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, रिस्क वेट एसेट डिवाइड बाय CAR या CRAR जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है। आई विल कम, जब हम लोग कैपिटल चार्ज मैंने इसीलिए अलग से रखा है क्योंकि एक फ्लो में समझेंगे ना सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो वहां पर क्या क्या आने वाला है, खाली मैंने इसलिए क्रेडिट रिस्क ही रखा है, ठीक है। तो जिसमें आपका अंडर द स्टैंडर्ड अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, द रेटिंग असाइंड बाय द एलिजिबल एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज, इनके ऊपर आएंगे अभी हम, ठीक है, आज ही इसी में पढ़ेंगे। Largely supported to measure of the credit risk, the RBI has identified external credit rating agencies that meet the eligible criteria specified under the revised framework, ठीक है। So there are 9 rating agencies, ठीक है, 6 इंडियन रेटिंग एजेंसीज और 3 आपका इंटरनेशनल में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैं, जैसे आपका मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच। इंडिया की आपका 6 रेटिंग एजेंसी जिनको आरबीआई ने आपका अलाउ किया है कि बैंक दे कैन यूज देयर रेटिंग टू असेस द कैपिटल चार्ज, ठीक है। उन्होंने जैसे किसी कंपनी को रेट कर रखा तो किस तरीके से रेटिंग है उसके हिसाब से, दैट इज एक्सटर्नल। अब हमारा खुद का भी इंटरनल रिस्क बेस्ड अप्रोच भी होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। सो कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, बैंक में rely upon the rating assigned by the external credit rating agencies chosen by RBI for the assigning risk weight for capital adequacy purpose as per the mapping furnished in the RBI guidelines। अब देखो क्यों है ना ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो अलाउ किए हैं आरबीआई ने उनको स्टैंडर्ड दिए कि व्हाइल यू रेट एनी कंपनी, सो दीज आर द स्टैंडर्ड दे शुड बी फॉलो, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने वो मीट करते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस को, इसलिए आरबीआई ने उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे अच्छा अभी आएगा, the circular issued by RBI has laid down detailed guidelines on capital adequacy requirement and the risk weight applied in case of following claims, जैसे ये सारे इनके अगेंस्ट में you have to maintain capital charge, ठीक है। जैसे claim on domestic sovereign, foreign sovereign, public sector enterprise, multilateral development banks, इसके अलावा आपका क्लेम ऑन बैंक्स, क्लेम ऑन प्राइमरी डीलर्स, क्लेम ऑन कॉर्पोरेट, इसके अलावा कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, क्लेम इंक्लूडेड इन रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोज, इसके अलावा क्लेम ऑन सिक्योर्ड by residential property, claim classified as a commercial real estate, NPA, non-performing assets, specified category venture capital, other asset like this, off balance sheet exposures, securitization exposure, capital adequacy requirement for credit default swaps, this। तो इनके अगेंस्ट में यू हैव टू क्रिएट द कैपिटल चार्ज, ठीक है। तो अगर आप एज अ बैंक अगर आपने इन एरियाज में लैंडिंग दी है, लोन दिए हैं, क्रेडिट आपका क्रिएट किया है या एसेट क्रिएट किए हैं, सो यू हैव टू मेंटेन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट दिस एंड यू कैन यूज रेटिंग्स ऑफ द रेटिंग एजेंसीज and accordingly you have to maintain the capital charge against capital credit risk, right? So eligible rating agencies, the RBI has undertaken a detailed process of identifying the eligible credit rating agencies whose rating may be used by bank for assigning risk weight asset to credit risk in line with the provision of a revised framework where the facility provided by bank opposes rating assigned by an eligible credit rating agency। तो इसमें कौन कौन से आते हैं एक बार I'll show the list। In accordance with the principle laid down revised framework, the Reserve Bank of India has decided the bank may use this ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो क्या है लिस्ट, दिस इज द लिस्ट, ठीक है। तो आपका ये 6 होंगे आगे से 1 2 3 4 5 6 7 आपका, सॉरी, ठीक है। सो ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देन वी हैव क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रिसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा स्मीरा रेटिंग्स लिमिटेड, एंड वी हैव इंफॉर्मेटिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आपका ये सारे। So these are the 7 rating agencies, domestic rating agencies. Apart from this, we have 3 international also. हाँ, ये जैसे यहाँ पे mention है, so Moody's, Fitch and Standard and Poor. RBI has decided that bank may use rating of following international credit rating agencies arranged in alphabetical order for the purpose of risk weight their claims
फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस, ठीक है। तो इनकी अगर रेटिंग्स अवेलेबल है तो इनको भी आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलो, एक और चीज हमारे पास है, आई गेस दिस इज द फाइनल थिंग जो हमारा इस टॉपिक का कोर्स कंटेंट है, ठीक है। सो इंटरनल रेटिंग अ बेस अप्रोच। अब एक्सटर्नल तो हमारे पास रेटिंग एजेंसीज हैं नाउ, अब इसके इतने से काम नहीं चलेगा ना, वी हैव टू हैव सम ओन सिस्टम ऑल्सो टू इवेलुएट दी लोन पोर्टफोलियोज इन अदर्स, ठीक है। जैसे होता है ना, अभी जब हम लोग क्रेडिट रिस्क में आएंगे तो आपका लोन रिव्यू मैकेनिज्म, आई होप आप लोग भी अपने ब्रांचेस में ये कराते होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपका बेसिक एक सर्टेन टाइम में हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं, वी कहीं ना कहीं आउटकम्स को हम उनसे आपका जो बोरोवर्स हैं उनकी जो फिनेंशियल हेल्थ पर क्या चेंजेस आए हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, IRBA, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। One of the most innovative aspect of the new accord is the IRB approach to measurement of capital requirement of credit risk. The IRB approach offers the following two options. One is foundation IRB approach, FIRB, and another one is advanced IRB, ठीक है। So इसमें अगर हम इसको बात करें, so since the approach is based on the bank internal assessment, the potential for more risk sensitive capital requirement is substantial. The silent feature of IRB, internal rating based approach, are the IRB is compute the capital requirement of each base. कौन कौन से एरियाज के ऊपर? पहला probability of default के ऊपर, दूसरा loss given the defaults LGD, एंड तीसरा आपका exposure at default, एंड फोर्थ वन इज आपका maturity, ठीक है। दीज आर द पैरामीटर्स जिनसे हम लोग आपका IRB का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो क्या है आपका ये पहला, probability of default which measure the likelihood that borrower will default over time given horizon। जैसे 10 साल का लोन है तो कितने साल में जाके वो डिफॉल्ट कर सकता है या 10, दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। दूसरा लॉस गिवन डिफॉल्ट, अब जैसे 8वें साल में डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी है तो उसके बाद कितना अमाउंट आपका लॉस हमें होगा, ठीक है। which measure the proportion of the exposure that will be lost if it a default occurs, ठीक है। जैसे हमने बात किया 8वें साल में अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके बाद कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, सो दैट इज 10, ठीक है। तीसरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट विच फॉर लोन कमिटमेंट मेजर द अमाउंट ऑफ द फैसिलिटी दैट लाइकली टू बी ड्रॉन इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। आपका अगर उसके अगेंस्ट में कुछ मतलब अगर वो डिफॉल्ट होता है तो वहां पे जो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, दैट इज मेच्योरिटी विच मेजर द रिमेनिंग इकोनॉमिक मेच्योरिटी ऑफ द एक्सपोजर, ठीक है। जैसे 2 साल, 10 साल में से 8वें साल में किया तो 2 साल। तो दिस इज IRB आपका, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, जो कहीं ना कहीं मतलब ये हमारे द्वारा किया था बैंकर्स के द्वारा। हम क्या करते हैं, कोई लोन आता है सो वी जनरली असेस दैट पर्टिकुलर लोन बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इस तरीके से मॉडल आपका डेवलप किया गया जहाँ पे एम्प्लॉइज आपका इसके ऊपर काम करे। ये एक तो एक्सटर्नल रेटिंग है हमें उसके बारे में। अब एक्सटर्नल रेटिंग दो तरीके की हो सकती है, एक तो बहुत नेगेटिव हो सकती है, एक बहुत क्लियर हो सकती है, वहां पे ज़्यादा टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जहाँ पे 50-50 वाला केस है, IRB विल बिकम गेम चेंजर इन दैट केस। या IRB के थ्रू हमने किया, अगर हम एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सेंक्शन का चांसेस ज़्यादा है, नेगेटिव है तो ना के चांसेस, 50-50 पे पहुंचेंगे तो एक्सटर्नल रेटिंग की हमें मदद लेनी पड़ेगी और दैट विल बी helpful in that particular scenario or vice versa, right? So bank use a number of technique to mitigate the credit risk to which they are exposed to. For example, exposure may be collateralized in whole or in part of cash or securities डिपॉजिट फ्रॉम द सेम काउंटर पार्टी गारंटी इन अदर्स, ठीक है, जो नॉर्मल सिक्योरिटाइजेशन या कोलेटरल जिसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज इट। तो ये आपका पूरा यूनिट, अब आप मैकमिलन की बुक खोल के देखेंगे सो यू विल बी एबल टू रिलेट दैट पर्टिकुलर कंटेंट बहुत ही अच्छे से, बहुत आसान से, बहुत प्यार से, ठीक है। तो कोशिश करी मैंने, लाइक इट टुक अराउंड 1 hour, ओके टुडे इट टुक 1 hour 10 minutes, ठीक है। सो यूजुअली आई ट्राई टू रैप अप द सेशन विद इन 1 hour। इट टोटली डिपेंड ऑन द टॉपिक ऑल्सो। तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें थी तो जिनको हमने समझा और सीखने की कोशिश करी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, पहली चीज़।
दूसरा आपका, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं हमेशा कमेंट्स में पिन कर देता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सर्च मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, JIB प्रेप ऑफिशियल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होंगे, कुछ भी ऐसा होगा तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इवन आई विल शेयर दिस PDF ऑल्सो इन दिस सेम ग्रुप, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस, आई विल सी यू टुमारो। कल से हम लोग आपका नाउ विल एंड पिछले जो 3 सेशन थे इंक्लूडिंग दिस वन, सो ये आपका फाउंडेशंस काइंड ऑफ फॉर मॉड्यूल बी। नाउ नेक्स्ट 4 सेशन विल बी बेस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। इनको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आखिरी सेशन आपका अगेन वो काइंड ऑफ समराइज करेगा इन सबको, ठीक है, खासकर लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर जो बात करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, and do like and share with your friends also, those who are preparing for CIB examination, right? So bye bye, take care all, have a nice day, thank you.